کہ جو بھی حضرات یہ روزہ رکھتے ہیں 15 ہاں شعبان کا، یہ غلط کرتے ہیں؟ ارے بھائی اچھا، وہ میں آپ کی بات مکمل کر دوں، وہ جو آپ نے اصل حدیث پیش کیا نا، میں اس کی وضاحت کر دوں جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے. نہیں یہ آپ مجھے بتا دیجیے. جو روایت آپ نے شروع میں پیش کیا تھا نا کہ اما سنت من سرر حادث شہر والی، کہ کیا اس مہینے کے اخیر میں آپ نے روزہ رکھا، تو آپ دیکھیے مسلم کی روایت میں الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِن رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1161. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر رمضان گزر جائے گا تو یہ روزے رکھ لینا. ذرا غور کیجئے، آپ جو سرر یا سرر، اس کا جو مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان ہے. اگر اس سے مراد 15 شعبان ہوتا اور صحابی نے 15 شعبان کا روزہ چھوڑا ہوتا تو اللہ کے نبی کیا کہتے؟ اللہ کے نبی کہتے کہ 15 شعبان کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا، اسے رکھ لو ابھی. یعنی آپ کا اگر کوئی روٹین کا روزہ تھا تو آپ مت چھوڑو، یہ آپ کے لیے نہیں ہو. تو اللہ کے نبی آخری شعبان کا روزہ بھی الاؤ کر رہے ہیں جس کے روٹین کا روزہ ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسمت من شرر شعبان، قال لا، قال فاذا افطرت فصم یومین. دوسری روایت میں فاذا افطرت، رمضان کا لفظ بھی ہے. اس کو آگے بڑھائیں زید بھائی، تو اس میں فاذا افطرت من رمضان بھی ہے اسی روایت میں. فاذا افطرت، جی یہ والی ہے فاذا افطرت من رمضان فصم یومین مکانہ. تو کہا کہ اگر تم رمضان کا روزہ رکھ لینا تو اس کے بعد اس کی جگہ 2 روزہ اور رکھ لینا، یعنی جو تم نے چھوڑ دیا ہے شعبان کا روزہ اسے پورا کر لینا، وہ بھی جو ہے 2 دن کر لینا. تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ماہ شعبان کے آخری دنوں کی، کیونکہ اگر 15 شعبان کی بات ہوتی تو آگے پورا 15 دن ریمیننگ ہے، بچا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ارے بھائی آپ نے 15 تاریخ چھوڑ دیا، رکھ لو، آپ کے لیے نہیں ہے منع، آپ رکھ لو. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں رمضان بعد رکھ لینا. اس کا مطلب رمضان چالو ہو گیا، ابھی وہ شعبان کا روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ آخری دن مراد ہے، کیونکہ آخری دن کا روزہ مس ہوا ہے صحابی سے. اگر 15 شعبان کا روزہ صحابی سے مس ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے 15 دن بچا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ارے بھائی 15 دن بچا، رکھ لو، کاہے چھوڑ دیے؟ لیکن نبی کہتے ہیں رمضان بعد رکھ لینا. یہ روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ رمضان کا آخری روزہ مس ہوا ہے اور ابھی آپشن ہی نہیں ہے رکھنے کا، اب رمضان بعد ہی رکھ سکتے ہیں. یہ سیاق بتا رہا ہے کہ 15 شعبان نہیں مراد ہے، مہینے کا آخری دن مراد ہے. اچھا یہ بات دیکھ لیجئے، یہ جو ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے نا ان دا مڈل آف دا منتھ، کہ مہینے کا نصف، یہ عربی متن میں یہ نہیں ہے. عربی متن میں سرر شعبان کی بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے خود سمجھا، مترجم نے، ٹرانسلیٹر نے، کہ اس کا مطلب ہے مڈل آف دا منتھ، لیکن عربی متن کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. جی کنٹینیو کریں. تو عربی میں جو ہے وہ تو سرر ہے یا سرر اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد شعبان کا آخری دن ہے. کیوں ہم آخری دن بول رہے ہیں؟ بہت سارے دلائل ہیں. اس میں سے ایک بھائی لغت میں جا کے دیکھیں، بہت سارے اہل لغت نے اس کا آخری حصہ مراد لیا، مہینے کا آخری حصہ اس سے تشریح کر رکھی، پوری تفسیر میری دوسری ویڈیو میں. لیکن یہاں روایت کا سیاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِن رمضان، کہ اچھا ٹھیک ہے رمضان ختم ہو جائے گا، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ، تو 2 دن رکھ لینا یہ تمہارا مس ہوا ہے. تو یہ مس ہوا ہے شعبان کا آخری پارٹ مس ہوا ہے، آخری روزہ مس ہوا ہے، یعنی جب شعبان ختم ہو رہا تھا. اگر یہ نصف مڈل جو لکھا ہوا نا انگلش میں، مڈل آف دس منتھ کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ مڈل دس منتھ ہی مس ہوا ہے، تو ابھی جو آگے 15 دن ریمیننگ اس میں رکھ لو، 15 دن باقی ہو نا بھائی. تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے رمضان بعد رکھ لینا؟ یہ کیوں کہتے رمضان بعد کیوں رکھواتے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کہتے اسی مہینے میں رکھ لو، 15 دن بچا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ رمضان کے بعد اس کو پورا کر لینا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ٹائم نہیں بچا ہے، اور صحابی سے جو روزہ مس ہوا تھا وہ شعبان کا آخری دنوں کا روزہ تھا. تو یہ تو ایک ایکسیپشن کو آپ لے کر اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو ایکسیپشن دیا گیا تھا صحابی کو کہ لاسٹ کا جو 2 روزہ ہے شعبان کا، تو اس ایکسیپشن کو آپ تو جنرلائز نہیں کر سکتے نا کہ جو کہاں ہم کر رہے ہیں. ارے بھائی ہو سکتا اللہ کے نبی ایک خاص صحابی، سب کو تو نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک خاص صحابی کو بول رہے ہیں کہ آپ نے کیا نہیں رکھا. یہ سیاق بتاتا ہے کہ ان کا آخری مہینے کا آخری کا کوئی روزہ ان کا عادی معمول رہا ہوگا ان کا. تو اللہ کے نبی ان سے پوچھ بیٹھے کہ آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں رکھا. اچھا تم بعد میں رکھ لینا. تو اس کا مطلب یہ شعبان کا آخری دن ہے. اگر آخری دن نہیں ہوتا، بیچ 15 شعبان کا روزہ مس ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی رکھ لو، 15 دن تو باقی ہے ابھی. لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد رکھنا؟ نہیں، لیکن یہ بات جو رمضان کا جو مقدس مہینہ وہ شروع ہونے سے پہلے
ये भी ज़हन में रखना होगा कि 2-3 जो दिन जो बोला गया कि रोज़ा नहीं रखना है शाबान में, वो तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इस मुताबिक मैं नहीं हाँ मानता हूँ कि ठीक है, ये लेकिन 15 किनारे मिस का हुआ रोज़ा ना, है। चलो ठीक है 2 दिन वो भी 2 दिन छोड़ देते हैं, 15 मिस हुआ ना, आपके कहने के हिसाब से 15 मिस हुआ, तब भी तो कम से कम 12 दिन तो बचा हुआ है, यानी आखिरी का 2 छोड़ के भी 12 दिन बीच में बचता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं रख लो अभी बचा हुआ टाइम। फिर ये अल्लाह के नबी क्यों कह रहे हैं कि रमजान के बाद रखना? आप कहते हो कि सहाबी का 15 रोजा मिस हुआ, सरद या सरद से मुराद 15 है, तो 15 छूट गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि भाई तुम रख लो, अभी 12 दिन बचा हुआ है, रख लो। लेकिन आप फरमा रहे नहीं, रमजान के बाद रखना। इसका मतलब ये है कि शाबान का जो आखिरी दिन था, सरर का मतलब आखिरी, यानी अखीर शहर, अखीर महीना, ये मुराद है। तभी अल्लाह के नबी कह रहे हैं रमजान के बाद रखना, वरना उसी महीने में रखवा लेते अल्लाह के शाबानी में। ये देखिए शेख साहब, आप तो सरर का मतलब आखिरी तो कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा तो इसे मिडिल भी कहते हैं। उनकी बात तो गलत है जो कहते हैं, उनकी बात गलत है। ये रवायत का सियाक मैं आपको दलील दे रहा हूँ, ये दलील है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये दलील है। अगर मिडल मुराद होता ना तो अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि रमजान के बाद रख लेना, ये अल्लाह के रसूल नहीं कहते मेरे भाई। मैं इस बात से 100% आपसे ये नहीं हूँ, अग्री नहीं हूँ। मत रहे ना, कौन आपको But- कहता है, लेकिन आप दलील दे दें, आपकी बात दलील के साथ मानी जाएगी ना। हम जो बात कह रहे हैं हम उसकी दलील दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल, हम कह रहे हैं कि देखो अहले लोगत ने दोनों बात लिखी, जमहूर अहले लोगत ने, अक्सर अहले लोगत ने यही कहा है कि सरर से मुराद महीने का आखिरी हिस्सा मुराद होता है। हमारे पास अहले लोगत के भी हवाले हैं और हमारे पास हदीस का सियाक भी दलील है, यानी हदीस का सियाक कह रहा है कि महीने का आखिरी हिस्सा मुराद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल क्योंकि अगर आखिरी हिस्सा मुराद ना होता तो अल्लाह के रसूल शाबान ही में रोजा रखवा देते उस सहाबी से। 15 दिन बाद नहीं अल्लाह कसम टोकते, 15 दिन नहीं, जस्ट फौरन टोकते अल्लाह कसम, लेकिन 15 दिन बाद नहीं बोलते, उसी वक्त बोलते अल्लाह के नबी। तो 15 दिन, तो ये कहना कि रमजान के बाद रख लेना, ये इस बात की दलील है। ये हदीस का सियाक उन अहले लोगत की तायद करता है जो ये कहते हैं कि महीने से मुराद महीने का, सरर से मुराद महीने का आखिरी हिस्सा है। आपके पास क्या दलील है? अहले लोगत का जो एक कौल है उसके लिए आपके पास हदीस क्या दलील है? मेरे पास हदीस दलील है, आपके पास क्या दलील है? अच्छा शेख, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये बताइए कि अगर जो ये भाई कह रहे हैं, अगर ये बात होती भी अगर ऐसे, और कोई आम तौर पे अगर 3 दिन का रोजा रख रहा है, आम तौर पे 13, 14, 15 के रोजे रख रहा है, और उसके ताल्लुक से बात हो रही है, यहाँ पे खुसूसी फजीलत जो बताई जा रही है, आम फजीलत तो हम भी मानते हैं जैसे हर महीने की है, वैसे उसी तरह से ये महीने में शाबान में भी है, शाबान में नहीं ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इससे ये खुसूसी फजीलत कैसे साबित होती है? ये बात से जो ये भाई ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुसूसी फजीलत जो है 15 शाबान की, आम फजीलत तो जैसे 13, 14, 15 हर महीने है वैसे है। क्या भाई अहमद भाई आप आम महीने जैसा समझते हो या खुसूसी फजीलत मानते हो? नहीं, अगर ऐसा रहता खुसूसी फजीलत, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि अगर ऐसा रहता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये नहीं कहते वो सुर्रा के रोजा के बारे में कि तुमने ये रखा। किसी की जब आदत होती है रखने की, अगर वैसे हम समझें कि हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट फिट नहीं हो रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट आखिर महीने का आखिर में परफेक्ट फिट हो रहा है, लेकिन अगर आपकी बात से समझें कि कोई अगर आदत है तो नेक अमाल में यानी कि कंटिन्यूस तसलसल बरकरार रहे, उसमें कंटिन्यूटी रहे, तो ये चीज कैसे खुसूसी सब फजीलत आप मानते हैं कि आम फजीलत जो 13, 14, 15 की वो मानते हैं? नहीं, आम महीनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मतलब आम महीने में 13, 14, 15 की जो फजीलत है वो तो हम भी मानते हैं, उसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है ना। यहाँ पे बात हो रही है खुसूसी फजीलत। शाबान में जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हदीस से साबित है कि शाबान में सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे, क्योंकि अमाल तो हम भी मानते हैं। कुछ हदीस नहीं, वो नहीं, वो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि भाई एक तो शेख किफायत ने जैसा कि बताया कि सरर से मुराद जमहूर उलमा के यहाँ पर यही है कि उसका आखिर शहर है। तर्जमे की वजह से हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो गया होगी, तर्जमे में वो लिखा है 15 शाबान का रोजा साबित करें, उसका सबूत देना। सही मुस्लिम से कहां से 15? भाई ये किसी भी उलमा में से किसी ने साबित नहीं किया, ये जो हजरत कह रहे हैं। ये 15 शाबान का जो इख्तलाफ है भी ना वो एक अलग है, लेकिन ये कि इससे 15 शाबान का रोजा साबित हो रहा है, किसी एक आलिम का नाम बताएं जो ये कहता हो कि 15 शाबान का रोजा साबित होता है पुराने उलमा में से। ये आज के बिदअतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुस्तनद उलमा में से हैं उनमें से किसी एक ने कहा हो कि 15 शाबान का रोजा इससे साबित होता है, ये किसी ने नहीं कहा। नहीं, जितनी भी ज़ईफ हदीस है मैं मान रहा हूँ ज़ईफ हदीस में ये मेंशन्ड है कि 15 शाबान के बारे में। देखिए ये जो, क्योंकि वो इंग्लिश तर्जमे में कहीं पे लास्ट उसका वो वर्ड आ गया मिडल वाला, तो किसी को उससे गलत फहमी ना हो जाए। मशहूर लोग हैं भाई, लोगत के माहिर हैं। कालू अबू उबैद लोग भी हैं।
हाँ। आखिर और जुमहूर भी यही कह रहे हैं कि अलमुरादो बिस्सुरर हुना आखिर शारी, कि सुरर से मुराद यहाँ पे महीने का आखिर है। इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है, और उन्होंने आखिर शहर मुराद लेने की दलील भी दी है कि ये इस्तिसरार से बना है। इस्तिसरार कहते हैं छुप जाने को, तो क्योंकि ये वो रातें होती हैं जिसमें चांद छुपा हुआ होता है। जैसे सिर कहते हैं ना, असरार, सिर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, छुपी कोई राज के लिए जो है ना असरार का लफ्ज आता है। तो वो जो जुमहूर की राय है कि सुरर से मुराद महीने का आखिरी है, वो भी आपके सामने मौजूद है कि वल अबू उबैद जो कि खुद लुग़वी हैं, वल जुमहूर, और जुमहूर उलमा ये बात कहते हैं अल मुरादु बिस्सुरर हुना आखिर शहरी, कि यहाँ पे सुरर से मुराद महीने का आखिरी अय्याम है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि उसकी वजह भी बयान कर रहे हैं हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह कि ये इस्तिसरार से बना है। इस्तिसरार का मतलब छुपना होता है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि इन रातों में चांद छुप जाता है। देखिए वो जी नीचे के अल्फाज हैं, वसुम्मियत बिज़ालिका लिस्तिस्दाल कमरि फीहिन, और इसको क्यों कहा गया सुरर, इसको क्यों कहा गया, इसका नाम सुरर क्यों रखा गया? कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों के अंदर चांद जो है वो छुप जाता है। और ये कौन सी रातें हैं? ये रातें हैं 28वीं की रात शाबान की और 29वीं की रात शाबान की। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ज़ैद भाई ने की वो भी बहुत अहम है कि चले मान लें कि यहाँ पे सुरर से मुराद जो है ना वो बीच वाले दिन है, तो बीच वाले दिन में तो पहली बात सिर्फ 15 शाबान थोड़ी है, अय्याम की बात हो रही है ना, लगे सुने 2 रोजे रखने के लिए कहे। दूसरी बात यह है कि भाई वो सहाबी थे जो हर महीने 13, 14, 15 को या 14, 15 का रोजा रखते थे। शाबान के महीने में उन्होंने नहीं रखा। ज्यादा इम्कान है इस बात का अगर इसको सही माने कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि निस्फ़े शाबान के बाद आपने हदीस भी पेश की कि निस्फ़े शाबान के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से मना किया है, तो उन्होंने नहीं रखा। हालांकि वो रखते थे, तो रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, तो रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि क्यों नहीं रखा, तो कहा कि अब जब रमजान खत्म हो जाएगा तो रख लेना। तो इससे ज्यादा अगर कुछ साबित भी हो जाए, अगर हम मान भी लें आपकी बात कि सुरर से मुराद यहाँ पर मिडल ऑफ द मंथ है, महीने के बीच के दिन है, तो अभी उससे ज्यादा क्या साबित होता है कि कोई अगर बीच के अय्याम में रोजे रखता है, किसकी आदत है 14, 15, 13, 14, 15 के रोजे रखने की, और शाबान में भी वो रखना चाहे तो रखे। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि खुसूसी तौर पे 15 शाबान के लिए यह हदीस थी। जो आदमी हर महीने रखता है वो रख ले 15 शाबान को, जो रबीउल अव्वल में भी रखता है, जो शव्वाल में भी रखता है, जो मुहर्रम में भी रखता है, तो वो रख ले, इस महीने में भी रख ले। ज्यादा से ज्यादा यही साबित होता है। खुसूसी तौर पे 15 शाबान की तारीख को ही रोजा रखना, ये थोड़ी से साबित होता है शाबान महीने का। तो ये आप लोगों भी इससे वाकिफ होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात आपकी ये समझ में आई कि जुमहूर समझते हैं ना, मेजोरिटी लुग़वियीन की और मुहद्दिसीन की ये मानती है कि यहाँ पर सुरर से मुराद आखिरी शहर है। एक बात समझ में आ गई आपके, महीने का आखिर मुराद है। अरे भाई सामने आपकी रिवायत फतहुल बारी की मौजूद है ना, फतहुल बारी की इबारत मौजूद है, शरह मौजूद है आपके सामने। मैं थोड़ा इतना तो आप, इतनी अरबी तो आपको भी आती होगी ना। आखिरुश शहर लिखा हुआ है मेरे भाई, आखिर का मतलब आखिर होता है, शहर का मतलब महीना होता है। इतनी अरबी तो आपको भी आती होगी। अल मुरादो, इससे क्या मुराद है? जुमहूर, काला अबू उबैद, कहते हैं अबू उबैद, वल जुमहूर, और जुमहूर उलमा अल मुरादो बिस्सुररी, यहाँ पे सुरर से मुराद भी उर्दू का लफ्ज है, सुरर का लफ्ज हदीसी के अंदर आया है। हुना का मतलब होता है यहाँ आखिरुश शहर, शहर और आखिर ये भी दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो तर्जमा तो बहुत आसान है कि यहाँ पे सुरर से मुराद महीने का आखिर है। अब इसमें क्या रिसर्च करना है? फतहुल बारी में ये रिवायत मौजूद है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फतहुल बारी में ये इबारत मौजूद है। एक बात तो ये साबित हो गई कि जुमहूर जो मुहद्दिसीन और लुग़वी हैं वो इससे महीने का आखिर मुराद लेते हैं। दूसरी बात है कि महीने का बीच वाला भी मुराद ले ले, तो उससे ये कहाँ साबित होता है? जो शेख किफायत ने सवाल किया वो बहुत अहम सवाल है कि इससे 15 शाबान का खास रोजा कैसे साबित होता है? हम लोग आप ही बताइए, 15 शाबान के अलावा जितनी भी ज़ईफ हदीस है अभी हमारे पास, 15 शाबान के अलावा किसी भी मतलब पर्टिकुलर डेट का, शाबान का किसी भी पर्टिकुलर डेट का, किनारे का या शुरुआत का, ऐसा कुछ ज़ईफ में भी आया है रवायत? भाई ज़ईफ रिवायत हम क्यों बताएं? ज़ईफ रिवायतें थोड़ी ना हमारे दीन में दलील होती है। आप हमसे क्यों मांग रहे हैं ज़ईफ रिवायतें? ज़ईफ रिवायतें तो जा रहे हैं यहाँ, जो ज़ईफ की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर आप ये बोल दें कि सही रिवायत से आप साबित नहीं कर सकते, तो फिर ज़ईफ के बारे में बात करेंगे कि ज़ईफ से साबित होता है। आप ये बोल तस्लीम कर लें आपकी सही रिवायत से आप नहीं साबित कर सकते, फिर ज़ईफ वाली बात करेंगे। अगर लॉजिकली देखें तो ये अरे भाई कहाँ घूम रहे हो?
इधर उधर मत भागिए आप ये बोल दीजिए कि सही हदीस से नहीं साबित हो रहा है, तो फिर देखेंगे कि लॉजिक से क्या होता है, ज़ईफ हदीस से क्या होता है। आप ये पहले बोल दें कि सही हदीस से नहीं साबित कर पा रहे हैं आप, तो फिर हम देखेंगे कि लॉजिक से क्या साबित होता है, ज़ईफ हदीस से क्या साबित होता है। तो सही हदीस से नहीं साबित हो रहा है ना 15 शाबान का रोजा, बगैर ज़ईफ हदीस का सहारा लिए नहीं साबित कर सकते आप। नहीं सही, अगर 15 शाबान का बात करें तो मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, सही हदीस में भी है कि पर्टिकुलरली अगर शाबान महीने का बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रखा करते थे, क्योंकि अमाल अल्लाह के हुजूर हमारा पेश किए इख्तिलाफ जाते हैं। आपसे, क्या हमने इससे मना किया कि आप शाबान में कसरत से रोजा रखें? ये तो इख्तिलाफी मसला ही नहीं है। जिस चीज पर इख्तिलाफ ही नहीं है उस पर आप क्यों बहस कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि शाबान में रसूलुल्लाह कसरत से रोजा रखते थे, आप भी शाबान में कसरत से रोजा रखें, लेकिन 15 शाबान भाई इबादत है, इबादत की तारीख तय करना ये रसूलुल्लाह की अथॉरिटी है, अल्लाह की अथॉरिटी है। आपने 15 शाबान को एक मखसूस, आप ये कह रहे हैं ना कि 15 शाबान की तारीख को रोजा रखने की खुसूसी फजीलत है, वो फजीलत 15 शव्वाल के रोजे की नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप ना। अगर कोई 15 शव्वाल या 15 मुहर्रम या 15 सफर को रोजा रखता है और कोई आदमी 15 शाबान को रोजा रखता है, तो 15 शाबान की जो फजीलत है वो 15 शव्वाल या 15 सफर को नहीं हासिल है ना। जी आप ये बोलते हैं ना, तो अब फजीलत तय करने का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास या रसूलुल्लाह के पास? तो या तो अल्लाह से या तो रसूलुल्लाह से ये बताएं कि 15 शाबान को रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ताला ने रोजा रखने का हुक्म दिया हो, या बताया हो कि उसकी खुसूसी फजीलत है। जब पूरे महीने की फजीलत है, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अमाल इस महीने में अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है, तो इसलिए मैं रोजे रखा करता हूँ, तो ये हर दिन है, हर दिन पे ये अप्लाई होता है। वो पूरे महीने पर अप्लाई होता है, आप हर दिन पर अप्लाई करें ना, 15 पर ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ एक ही दिन पे अप्लाई कर रहे हैं एक ही दिन पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसको? महीने को। तो आप ये बोल दें कि 14, 15, 13, 10 कभी भी रोजा रखे सवाब एक ही जैसा होगा उसका, ऐसा बोल दें आप। अगर आप पूरे महीने वाली रिवायत ला रहे हैं तो ऐसा बोल दें कि 13, 14, 15, 20 किसी भी तारीख को रोजा रखे उसका फजीलत एक ही जैसी होगी, ऐसा बोल दें आप। अगर जितने भी हदीसें मैंने पेश किए हैं उन हदीस को अगर एक जगह जमा करके अगर देखा भी जाए तो वो आपने सिर्फ एक हदीस पेश की है भाई, एक ही हदीस, आपने एक भी हदीस नहीं पेश की आपने। इन्होंने कोई ज़ईफ हदीस नहीं पेश किया अभी 15 शाबान मैं पेश करना भी नहीं चाहता हूँ। जो भी पेश किया है उसमें शाबान के रोजे की कोई बात ही नहीं है। तिरमिजी वाली रिवायत पेश किया वो ज़ईफ तो है, उसमें मना है, उससे मना साबित होता है। मुस्लिम की रिवायत जो है आखिरी शहर से मुतल्लिक है, गैर मुतल्लिक रिवायत है। आपने तो कोई रिवायत ही नहीं पेश किया अभी तक, ना सही ना सही। तिरमिजी आप ज़ईफ मानते हैं लेकिन है वो सही। अरे भाई सही मान लिया तो आपके खिलाफ जा रही है रिवायत, वो तो आपके खिलाफ जा रही है रिवायत। अजीब आदमी हो यार, वो अपने खिलाफ रिवायत पेश करके कहते हो मैंने दलील दे दिया। अजीब आदमी, अपने खिलाफ दलील दे रहे हो, कहते हो कि हमने दलील दे दिया। उसमें तिरमिजी वाली रिवायत में भी 15 शाबान का जिक्र कहाँ पर है कि 15 शाबान का रोजा रखना है? उसमें भी तो 15 शाबान, ना वो मतन आपके मुआफिक है ना वो सनद आपके मुआफिक है, मतलब ना वो मतन आपके मुआफिक है। वो भाई साहब जो है सही मुस्लिम से सोच रहे थे बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, सही मुस्लिम से साबित कर लूंगा। ये आज के कुछ नए लोगों का ऐसा, पुराने कितने उलमा ने बहस किया भैया 15 शाबान पे, किसी को ये जुरत नहीं हुई सही मुस्लिम को लाके बीच में पेश कर दे कि लो 15 शाबान यहाँ से साबित होता है। ये आज के बिदअती लोगों का ये रवैया है कि नया नया इस्तेदलाल ला रहे हैं। बहरहाल मैं खुलासा कर देता हूँ भाई साहब, आपने जो सही मुस्लिम की रवायत पेश की है, वरना बात इसी पर चलती रहेगी, हमें और लोगों से बात करना है। 3 वजह से आप जो करें बीच वाला दिन मुराद लेंगे वो साबित नहीं, तो उसकी 3 वजह। पहली वजह ये जमहूर उसके खिलाफ है, जो आप कह रहे हो ना इत्मीनान नहीं है, आपके आदमी इत्मीनान से क्या फर्क पड़ता है? जमहूर अहले इल्म, जमहूर अहले इल्म कहते हैं महीने का आखिरी हिस्सा मुराद है, पहली बात। दूसरी बात, लुगत से ये तायद होती है कि आखिरी हिस्सा मुराद है, क्योंकि वो चांद छुप जाता है इसलिए उसको, उसके माने एक छुपना भी होता है इसलिए उसको कहा गया है। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल की जो हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस का जो सियाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कह रहे हैं कि रमजान के बाद रख लेना, ये सियाक दलील है कि शाबान का आखिरी हिस्से का रोजा मिस हुआ था। अगर 20 के हिस्से का रोजा छूटा हुआ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम अभी रख लो, यानी शाबान ही में रख लो, रमजान के बाद नहीं रखवाती। ये 3 बातें इस बात की दलील हैं कि मुस्लिम की रवायत में जो सरर शाबान है उससे मुराद 15 शाबान नहीं है, शाबान के आखिरी दिनों का रोजा मुराद। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है?
आई प्लस टीवी को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट आई प्लस टीवी। मैं आई प्लस टीवी के साथ हूं।